Honorable members, Honorable Speaker, Honorable members, kindly please be seated. We will now rise for the national anthem. Honorable members, kindly be seated. Honorable members, may please welcome the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji. You can also thump the desks and welcome him by floral bouquets by the Honorable CM, Dr. Pramod Sawant ji. Honorable members, may also welcome the Honorable Secretary General of Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh ji. You can also thump the dust. I now kindly call upon the dignitaries on the dais, the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, the Honorable Speaker of Goa Vidhan Sabha, Shri Ramesh Tavadkar ji, the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, to water the sapling kept as part of the theme of protection of the environment. The sapling will be planted in the garden of the Assembly complex a little later on.
Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, would kindly like to present the memento to the Honorable Speaker of Goa, Shri Ramesh Tavadkar ji. Honorable Secretary General of Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh ji, would kindly like to present the memento to the Honorable Deputy Speaker of the Goa Vidhan Sabha, Shri Joshua D'Souza ji. The Honorable Speaker of Goa Vidhan Sabha, Shri Ramesh Tavadkar ji, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, will present the memento to the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Yeah. Okay. The Honorable Speaker of Goa Vidhan Sabha, Shri Ramesh Tavadkar ji, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, will present the memento to the Honorable Secretary General of the Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh ji. Who is giving now? Lok Sabha Speaker will be given to CM. He is given to Speaker already. The CM also has to. Now to CM, sir. Lok Sabha Speaker, sir, will now give the memento to the Honorable CM, sir. Dr. Pramod Sawant ji. Dr. Pramod Sawant ji, to please kindly present the memento to Om Birla sir ji. और कौन? They have given, CM has given. अब छोड़ दीजिए तो बाद में CM sir has given. We are indeed honored and privileged to have amidst us the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, who has graced the state of Goa and especially us in this house, for which we express our sincere gratitude. Shri Om Birla ji was unanimously elected as Speaker of Lok Sabha on 19 June 29 of the 17th Lok Sabha and has achieved several milestones and has played a key role in realizing the aspirations of the people and has shown exemplary initiatives in every field, be it legislative, administrative, and e-governance. His role as a speaker of his effectiveness
with which the proceedings of the House is conducted is indeed remarkable in the interest of development and public welfare. He serves as a Member of Parliament of Lok Sabha from Kota Bundi constituency in Rajasthan since 2014. He was also a member of Rajasthan Legislative Assembly representing Kota South Assembly from 2003 to 2015. He was elected to the 16th and the 17th Lok Sabha. During his tenure in 2003 to 2008, he was the Parliamentary Secretary rank in Rajasthan government. I shall now call upon the Honorable Speaker of Goa Vidhan Sabha, Shri Ramesh Tawadkar ji, to kindly deliver his welcome address. सबको मेरा प्रणाम, सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय गोवा विधानसभा के उपसभापति जसवा जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद के सदस्य, माननीय विधानसभा के माननीय सदस्य, पूर्व सदस्य, माननीय राजनीतिक दलों के नेता, लोकसभा महासचिव, गोवा के मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव एवं अन्य अधिकारी, नगरपालिका, पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, मीडिया के सदस्य और मेरे भाइयों और बहनों, हम वरिष्ठ दिग्गजों के आकाशगंगा के बीच लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और सभी विशिष्ट गणमान्य सदस्यों का स्वागत करना वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका विकसित भारत 2047 इस विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने और समृद्ध करने के लिए इस समय में महती सभा में एकत्रित हुए हैं। श्री ओम बिरला जी हमें आज इसी विषय पर रोशनी डालेंगे ताकि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी सुनहरे लक्ष्यों के जैसे कि सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत को हम पूरा कर सके। हमें अंत्योदय तत्वों का पालन करते और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का लक्ष्य ही पूरा हमें करना है ताकि हम लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के मजबूत करें और आज विधायक, नीति निर्माता, नेता और जनप्रतिनिधि के रूप में हमने इसी लक्ष्य को आगे लेकर विकसित भारत 2047 में को इस विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना है ताकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वृद्धि और विकास के फल हम इस सभी को मिल सके, जो वास्तव में आत्मनिर्भर भारत में लोगों को जीवन को बदल सकता है। इन लक्ष्यों में हमें स्थापित यह दृष्टिकोण वास्तव में लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि हमें सबका साथ सबका विकास मार्ग से चलना है। जब मैंने सभापति पद ग्रहण किया तब मैंने हमेशा अपने को 24/7 लोगों की सेवा में समर्पित किया है। श्रमदान से तक गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपना घर बनाना और उनको देना मेरा दूरगामी सपना सफलता की ओर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रभावी परिवहन सुविधाओं, पानी की उपलब्धता, शिक्षा जैसे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की पूर्ति की है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ हमें सामाजिक न्याय प्राप्त करके इस एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए। विधायकों के रूप में हमें विधियों के प्रभाव, परिणामों के दृष्टि और समय पर मूल्यांकन और हमारे घटकों को उचित रूप में सेवा देने के लिए सेवाओं को शामिल करने के सरकार द्वारा प्रदान करने वाली बुनियादी सेवाओं को प्रभावी और कुशल वितरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण,
बिजली की पूर्ति, युवकों को नौकरी सफलतापूर्वक करके हमें लोगों का जीवन बदलकर हम उनकी नब्ज में छू सकते हैं। स्थानिक स्तर पर विकासात्मक आयोजकों के निष्पीड़ा विधायकों के निरंतर रुचि और महत्वपूर्ण इनपुट के माध्यम से विकासात्मक नीतियों को निर्माण कर सकते हैं। देश का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हमेशा केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों की प्राथमिकता बनी हुई है। विधायकों को अपने घटकों की विकासात्मक समस्याओं को संबोधित करके विशिष्ट रूप से रखा गया है। विधायक निश्चित रूप से लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नगरपालिका, पंचायतों और जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करके स्थानिक प्रतिमा को बढ़ावा देना है। राष्ट्र की संसद एक लोकतांत्रिक राजनीतिक में लोगों के विश्वास का एक ज्वलंत प्रतीक है और शासन प्रक्रिया के भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता के पुष्टि दी है। संसद एक पवित्र संस्था है जो लोगों को इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र के भाग्य का मार्मिक करके हुए संविधान द्वारा अनिवार्य। इसलिए यह महत्वपूर्ण के सदस्यों के संसद में दोनों सदनों के कामकाज में उनकी प्रभावी, सार्थक और उत्पादक भागीदारी और लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। श्री ओम बिरला जी के सक्षम मार्गदर्शन में सदन में सदस्यों के सार्थक और प्रभावी भागीदारी से ही जीवंत लोकतंत्र और ई गवर्नेंस और बेहतर विधायी और प्रशासकीय उदाहरणों को आने वाले समय में इस पर एक अच्छा बेंचमार्क साबित हो सकता है। ओम बिरला जी आज आमच्या काणकोण मतदारसंघाक सांचे दुसऱ्या फंक्शनाक येवपाचे आसा। विशेष करून ह्या अंत्योदय जो विषय आमकां दिल्लो आसा त्याच विशयाच्या संदर्भात जे अंत्योदय तत्वाचेर आमी जे मूळ गोंयकार जांकां छप्पर ना अशा तरेचे सिंबॉलीक आमी 20 घरां बांदपाचो प्रयत्न की सामुहीक तत्वाचेर कार्यकर्त्यांनी केल्लो आसा। त्यामुळे हो कार्यक्रम सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो। हांव सगळे आमचे लोकप्रतिनिधी आसा की आमदार मंत्री आसा तांकां ह्या कार्यक्रमाक निमंत्रण दिता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बार फिर एक बार महती सभा में आपकी सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। Thank you, Speaker Sir. I now call upon the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, to address and enlighten us. विकसित भारत 2047 आज़ादी के अमृत काल में इस समारोह जो यहाँ पे आयोजन हुआ, इस कार्यक्रम में हमारे साथ में श्री ओम बिरला जी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री रमेश तवड़कर जी, डेप्यूटी स्पीकर जोशुआ, रेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स, एमएलए, बाकी सभी पंच सरपंच, एक्स एमएलएस, एक्स मिनिस्टर्स, रिपोर्टर्स, बाकी सभी हांव सगळ्यांचें मनापासून स्वागत करता। आनी खरोखरूच गोंयच्या इतिहासांतलो आज एक म्हत्वाचो क्षण आसा की ज्या दिसा आमी पळयता की आमकां पयलेच फावटी लोकसभेचे स्पीकर श्री ओम बिर्लाजी हांकां गोंयच्या विधानसभेंतल्यान आयकपाची संद आमकां सगळ्यांक मेळटा। आनी एक इम्पॉर्टंट टॉपीक विकसीत भारत 2047 आझादी का अमृत महोत्सव ह्या काळात ते आमच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या बरोबर पंच, सरपंच, आमदार हांच्या बरोबर उलोवपाचो आसा। ऐतिहासीक क्षण इतक्याच खातीर पयलेच फावटी गोंय राज्यांत सगळ्या लोकप्रतिनिधी वांगडा पंच आसतले, सरपंच आसतले आनी आमदार हांच्या बरोबर विकसीत भारताचें स्वप्न, माननीय मोदीजींचें स्वप्न सगळ्यांच्या मुखार दवरपाचें काम माननीय श्री ओम बिर्लाजीन केलां। नेटान तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजून तांचें एकदां स्वागत करचें। गोंयच्या इतिहासात आमी पळयता की नवीन विधान भवन माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या हस्ते ह्या विधान भवनाचें उक्तावण जालें। आनी आतां पर्यंतचो जो इतिहास काडीत जर आमी पळयता की प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलामजी, लेट अब्दुल कलामजी जे राष्ट्रपती आसतना ह्या हावजांतल्यान
तांच्यांनी एकदां सगळ्या लोकांक आनी गोंयच्या विधानसभेक एड्रेस केल्या आनी ताज्या उपरांत आयज पयलीच फावटी माननीय श्री ओम बिर्लाजी हे आमकां हांगासर आमी उलोवपा खातीर हांगासर आयल्या. त्या खातीर हांव समिस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंयच्या विधानसभेच्या वतीन हांव तांचें खूब खूब स्वागत करता. आमी पळयता की लोकसभेत वेगवेगळ्या विशया वयल्यो चर्चा डिस्कशन सर आप बहुत ही अच्छी तरह से सभी डिस्कशन डिबेट जो लोगों के बीच में चल रहा है वो आप हमेशा के लिए हैंडल करते हैं. हमें सर आपका बहुत ही अभिमान है कि जिस तरह से लोकसभा आप चला रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आप लोकसभा के डिबेट और डिस्कशंस हैंडल करते हैं. ये हमें लोकसभा में जो आज तक यानी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेट सोमनाथ चटर्जी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे महाअनुभव लोकसभा में जिनका डेलिब्रेशन हमेशा के लिए और देश के प्रति आदर रखते हुए हमेशा के लिए उनका योगदान रहा है. उसी तरह से सर गोवा में सबसे पहले मैं गोवा के लेट चीफ मिनिस्टर श्री बाबूसाहेब बांदोडकर जी, लेट स्पीकर श्री पापू शिरोडकर, लेट श्री मनोहर पर्रीकर, लेट अपोजिशन लीडर जैक सिकेरा एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग द लेजिस्लेचर श्री प्रताप सिंह राणे जी, इनका भी कंट्रीब्यूशन सर गोवा में बहुत योगदान रहा है. गोवा के पूरे डेवलपमेंट में और गोवा के लेजिस्लेचर में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है. सर आपका इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में आपका इस वक्त का योगदान ही हमेशा के लिए यादगार योगदान रहेगा. मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस आज़ादी के अमृत काल में और आपके लोकसभा स्पीकर में इस भारत देश को न्यू पार्लियामेंट हाउस मिला है. इसलिए गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. सगळ्यांक नेटान ताळयो वाजोवन न्यू पार्लियामेंट हाउसा खातीर सगळ्यांनी अभिनंदन करचें. आमी पळयता की फुडल्या 100 वर्सांचो पाया घटमूट करपा खातीर लोकशाहीचो नवीन पार्लियामेंट हाऊस हे खूब महत्वाचें आशिल्लें आनी सरांच्या कार्यकाळात तें जाता. म्हाका दिसता ही खूब अभिमानाची गजाल आसा. फुडल्या 100 वर्सां खातीर भारताची लोकशाही जी आसा ही घटमूट जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटली आनी त्याच दृश्टीन आमी विकसीत भारत हें स्वप्न पळोवन आमी फुडें वता आनी हो भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या वाटेत आमी एक स्टेप फुडें वचत आसा. आमी सातत्यात पळयता की विकसीत भारत जाता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्यात महत्वाच्यो आसा. नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट गुड गव्हर्नन्स, त्याच बरोबर ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस, रिफॉर्म्स इन एड्युकेशन सेक्टर्स, रिफॉर्म इन मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स, हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करीत आसा. आनी त्याच बरोबर विकसीत भारतात विकसीत भारत 2047त लोकप्रतिनिधींचो रोल कितें आसा. आमी पळयता की बरेचशे फावटी आमदार हेचो रोल आसा असो ना, तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचो रोल वो विकसीत भारतात आसा. आनी म्हणून तर आमकां पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आनी आमदार हे सगळ्या जाणांचो विकसीत भारतात सगळ्यात महत्वाचो रोल प्ले करपाक जाय. आनी तोच रोल कितें आसचो वो समजून सांगपा खातीर आमच्या मदीं आज लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय ओम बिर्लाजी हांगासर आयल्या. म्हाका खबर आसा की तांचें मार्गदर्शन हें आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा. तांचें मार्गदर्शन फुडल्या 25 वर्साच्या विकसीत भारताची स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां प्रेरणा दितलें आनी आमी सगळे जाण तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन विकसीत भारतात विकसीत गोंय घडोवपा खातीर आनी खऱ्या अर्थात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें आत्मनिर्भर भारत हें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंयांत खरें करपा खातीर आमी सातत्यात सगळे जाण वावुरतले. म्हाका सांगपाक आनी आज परत एकदा ओम बिर्लाजी हांचें स्वागत करपा खातीर मना पासून खूब खूब बरें दिसता आनी निश्चित रित्या हाजो फायदो घेवन फुडल्या विकसीत भारतात विकसीत गोंय करपाक आमी सगळे जाण पावलां उचलतले. परत एकदा हांव तांचें स्वागत करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. I now call upon the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birlaji, to present his keynote address on the theme Vikasit Bharat 2047, the role of elected representatives. गोवा विधानसभा में आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है.
2047 विकसित भारत बनाने में हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका, गोवा विधानसभा की भूमिका और हमारी चुनी हुई जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय क्षेत्र, हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम किस तरीके से नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मविश्वासी भारत के निर्माण के लिए एक साथ सामूहिक प्रयास के साथ सामूहिक संकल्प के लिए यहां पर आए हैं। मैं इस मौके पर गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, गोवा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रमेश तावड़कर जी, केंद्र सरकार में मंत्री और जिन्होंने सांसद और मंत्री के रूप में लंबे समय तक गोवा का नेतृत्व किया, श्रीपद यासो नाइक जी, गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जोशु डिसूजा जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण, गोवा विधानसभा के पूर्व मंत्री, विधायक, सभी प्रतिष्ठित नागरिकों का मैं गोवा विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गोवा देश की वो मनोरम धरती है जहां की प्राकृतिक सुंदरता, जहां की संस्कृति, जहां का समुद्री तट, जहां की आधुनिक और विरासत संस्कृति और विशेष रूप से नूतनता को लिए हुए, जिसमें प्राचीनता का अद्भुत संगम है, गोवा अपने आप में एक विशेष स्थान रहता है। गोवा इस देश का नहीं, विश्व का एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर आते हैं और विश्व के कई देशों से भी यहां आते हैं। इसलिए पर्यटक के रूप में भी गोवा को जिस तरीके से विकसित किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गोवा की मेहनतकश, कठिन परिश्रमी, मिलनसार इस जनता के कारण गोवा ने सबका दिल जीता है और इसीलिए आज देश और दुनिया के लोग गोवा की तरह आकर्षित होते हैं। आज हम यहां पर 2014 में विकसित भारत का सपना हम सब ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश की जनता को आह्वान किया कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से देश की 140 करोड़ जनता के सामूहिक प्रयास, सामूहिक कर्तव्य, सामूहिक दायित्व, हम सब मिलकर 2014 जब आजादी के 100 साल होंगे, जब विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं और इस विकसित भारत को बनाने में सभी राज्य की जनता
देश की जनता सामूहिक प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प भी सिद्धि की ओर होगा। मुझे पता है कि गोवा विधानसभा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। गोवा की जनता ने एक लंबी लड़ाई 47 के बाद लड़ी और 1961 के अंदर गोवा को स्वतंत्रता मिली और आज इतने कम समय के अंदर गोवा का विकास, यहां की जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण में इस विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्यों यही वो कार्यस्थली है जहां पर हमने एक राजनीतिक संस्कृति, एक कार्य संस्कृति के आधार पर गोवा के विधानसभा की नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए, लोगों को अधिकार देने के लिए कानून बनाए, जिसके कारण आज गोवा विकास की नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। मुझे खुशी है, गोवा चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, अन्य सभी पैरामीटर में गोवा अग्रिम स्थान पर है। यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार किस तरीके से हम देश के और विश्व के मानकों में सबसे प्रथम पंक्ति पर आए, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये कह सकते हैं, देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेही बनी है। लेकिन हमारी सपने कुछ और हैं और इन सपनों को हम करना है इस 25 वर्षों के अंदर। आजादी के बाद हमने एक लंबी विकास की यात्रा की। आजादी के एक लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमने उन चुनौतियों से लड़े, सामूहिकता के साथ मिले, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ लड़े और हमने दुनिया में साबित किया कि इतने बड़े देश में जहां अलग अलग विविधता है, अलग अलग विविधताओं की संस्कृति है, भाषा है, बोली है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हमने इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से आज दुनिया को बताया है कि इस विविधता की ताकत हमारी सामूहिकता की ताकत है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में विश्वास करते हैं और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जो हमारा अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में हमने काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन चुनौतियां हमारे सामने हैं। लेकिन इन चुनौतियों को लड़ने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है, हमारा कुशल नेतृत्व है, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जनता के विश्वास भरोसे को जीता है। इसलिए हमारी जोश, उमंग, नया कुछ करने का संकल्प एक सामर्थ्य भारत के अंदर है। दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। आज हमने कई आपदाएं झेली, कई चुनौतियां झेली, कोविड जैसी महामारी चुनौतियों से हम लड़े, लेकिन चुनौतियों से लड़ने के बाद उस आपदा से हम भी निकले और हमने विश्व के कई देशों को आपदा में मदद भी की। आज भारत का सामर्थ्य बना है, हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, नया इनोवेशन की ताकत, नया चिंतन, नया विचार, नया जोश, कुछ कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य भारत के अंदर है
और इसीलिए हमारी सबके सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। साथियों, आप सब जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के नाते आपका दायित्व ज्यादा होता है। एक छोटे राज्य में हम किस तरीके से जनता के साथ संवाद कर कर, जनता के साथ चर्चा कर कर, उनके अभावों को समझकर, उनकी कठिनाइयों को समझकर और भविष्य की चुनौतियों को समझकर हम इस सदन के माध्यम से चर्चा और संवाद से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इसी चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से हमने देश का विकास किया है और इसीलिए हमारे जो विधानमंडल हैं, उन विधानमंडल के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। और हम जितनी ज्यादा जनता से हमारा संपर्क होगा, जितनी निकटता से हम समस्याओं को समझेंगे और उसका समाधान का रास्ता की चर्चा करेंगे। मुझे कई बार लगता है कि विधानमंडल हो या संसद हो, उसमें नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करने की जगह आजकल विरोध की नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। नीतियों की आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन हम जब फ्लोर पर बात करें, जब नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करें, सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करें और किस तरीके से उन नीतियों, कार्यक्रमों को ठीक से उसका एग्जीक्यूशन हो, जो नीतियां, कार्यक्रम इस विधानसभा में बनाए हैं, सरकार ने बनाए, उनको जनता तक ठीक से नहीं पहुंच रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए सदन के अंदर हम हर सरकार के एक्शन पर चर्चा करें। कानून बनाते समय हमारी लंबी चर्चा, संवाद होना चाहिए। हर सरकार कानून बनाती है जनता की बेहतरीन के लिए, जनता को अधिकार देने के लिए और एक निष्पक्ष और जवाबदेही शासन के लिए। और उस समय जब कानून बने तो कानून के समय व्यापक डिबेट हो, डिटेल में डिबेट हो, चर्चा हो। जितनी चर्चा, संवाद से कानून बनेंगे उतने ही बेहतरीन कानून बनेंगे और जनता का उतना ही हम अपने दायित्व को निभाते हुए उनके जीवन को बेहतरीन करने का काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे खुशी है कि गोवा विधानसभा के दिन 40 दिन से ज्यादा गोवा विधानसभा चलती है, क्योंकि हमारी चिंता यह रहती है कि आजकल विधानमंडलों की बैठकों की संख्या कम होती चली जा रही है। यह हमारा चिंता का विषय है। लेकिन गोवा छोटा राज्य होने के बाद भी यहां पर अच्छी चर्चा होती है, संवाद होती है, डिबेट होती है और डिबेट, चर्चा, संवाद से जो मंथन निकलता है उससे हम जनता के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। और इसलिए मुझे आशा है आने वाले समय में हमारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत है, चाहे नगरपालिका क्षेत्र है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। जितनी सदनों में चर्चा होगी उतनी कार्यपालिका पर ठीक से निगरानी और नियंत्रण हम कर पाएंगे। और इसीलिए इन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा, संवाद होना चाहिए। हर विषय पर चर्चा, संवाद होना चाहिए। चाहे ग्राम पंचायत हो तो ग्राम सभा में जब विकास की योजनाएं बनाए तो ग्राम सभा विकास का काका जनता के बीच में बैठे, प्राथमिकता के आधार पर गांव में क्या विकास होना है, क्या राज्य की लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो पंचायत राज राज्य तक पहुंचाए,
राज्य की विधानसभा के अंदर उन योजनाओं पर चर्चा हो। और मेरा विश्वास भरोसा है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं को एग्जीक्यूशन करते हुए, उनके अभावों को देखते हुए एक ऐसे पैरामीटर पर पहुंच सकता है कि गोवा आने वाले समय के अंदर भारत में नहीं, विश्व के अंदर जो हमारे एसडीजी के गोल हैं उनको 2030 के पहले लक्ष्यों को पूरा करने की संकल्प को ले। और इसीलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारे विधानसभा छोटे हैं, निर्वाचन मंडल छोटे हैं, इसलिए हमारी जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें प्राथमिकता क्या है, किस प्राथमिकता के आधार पर हम सबसे पहले उन प्राथमिकताओं को लेकर जितना हमारा बजट है उस बजट में हमारी प्राथमिकता तय हो और प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य तय कर उन लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करें। अगर हमने इस दिशा की ओर पंचायत से लेकर विधानमंडल तक चर्चा संवाद से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया तो मैं कह सकता हूं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को सबसे पहले गोवा करेगा। और इसीलिए गोवा विधानसभा से मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं। हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे लक्ष्यों से काम करें। लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है और विश्वास भरोसा बढ़े। यह हमारी सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, नई तकनीकी का उपयोग करते हुए हम हर व्यक्ति से हमारा संवाद सीधा होना चाहिए। और इसीलिए इस बदलते परिप्रेक्ष्य के बदलते दौर के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आप मैं आज जब गोवा से आ रहा था तो मैं देख रहा था किस तरीके से गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में हो रहा है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे निवेश हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोई सेक्टर नहीं है जिसमें भारत नेतृत्व नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम सब अगर सामूहिक प्रयासों से करेंगे, सामूहिक जिम्मेदारियों से करेंगे, पूरे संकल्प के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है उसको पूरा कर पाएंगे। मैं पुनः गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से हम सब सामूहिक प्रयासों से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम जनप्रतिनिधि के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए हम अपने क्षेत्र की जनता का अधिकतम कल्याण कर सकें, सबके जीवन की में समृद्धि ला सकें, खुशहाली ला सकें, इस जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Sir. I shall now call upon the Honorable Deputy Speaker of Goa Vidhan Sabha, Shri Joshua D'Souza ji, to kindly deliver his word of thanks. माननीय सभापति लोकसभा की श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ गोवा विधान सभा श्री रमेश तावड़कर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
honorable members and former members of the House, honorable leaders of various political parties, Secretary General of the Lok Sabha, Chief Secretary of Goa, secretaries of the various government departments and officials, honorable elected representatives of various bodies, members of the media, and all distinguished dignitaries who have gathered here in this august house. We are indeed honored that this house has been graced by the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, a stalwart who has a deep insight of parliamentary practices, procedures, and good governance. We in this august house are indeed privileged that this house has been graced by your distinguished presence, sir. You have indeed enlightened us by your address on the theme Vikasit Bharat 2047 and the role of our elected representatives. We look forward to listening to your words of wisdom, and we get a sense of enlightenment after hearing you, sir. We are deeply grateful to our Honorable Speaker, Shri Ramesh Tawadkar ji, and the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant ji, for the brilliant and novel initiatives by their dedicated efforts to make this occasion an eventful one. I would also like to take the opportunity to express my profound thanks to the Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members and former members of this House, Honorable Leaders of various political parties, Secretary General again of the Lok Sabha, Chief Secretary of Goa, Secretaries of various government bodies and officials, elected representatives again, members of the media and distinguished dignitaries who have gathered here in this august gathering, who have come on our invitation and graced this occasion. I would also like to express my appreciation to the sincere efforts done by the government officials and the staff, doctors, police and security personnel, fire services and all other government private agencies, members of the print and electronic media, all media channels who have tirelessly rendered their services to make this event a great success. Thank you. Jai Hind, Jai Gomantak. Thank you, Honorable Sir. I would like to inform the dignitaries and the honorable members that kindly assemble for the group photograph, which will be followed by lunch after the national anthem is played. For photograph. Yeah, sang. Yeah, you have to. Okay.